للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. We are going to discuss the tool of purification, next tool of purification, which is charity. In the beginning, we discussed there are two types of worships: performed by body, performed by wealth. बदनी इबादत और माली इबादत. सलाह performed by body or by wealth. Body, this is mali, this is badni ibadat. Fasting, body, and this one charity, wealth. This is mali ibadat. Okay, charity has two types. Number one, obligatory charity, which is called zakat, and devotional charity, or you can say optional charity, which is called sadaqah. Okay, academically, both terms zakat and sadaqah used in place of each other. Sometime in the Holy Quran, sadaqah is used in place of obligatory charity, and sometimes zakah also used in place of devotional charity. But in the language of the Islamic law, there are clearly terminologies which are used and specified for the different things. So zakah now to be used for the obligatory charity, and sadaqah now to be used for devotional charity. Okay, what is zakat? Zakat, root meaning or the literal meaning is, number one, to increase and to purify. And Allah subhanahu wa ta'ala promised once you do charity for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so your wealth shall be increased and your wealth shall be purified. The philosophy of charity. Philosophy of charity is that no one in this world could claim that whatever she is earning is 100% halal. No one. Since we all are human beings, we made mistakes. We do something which is against our duty, sometimes intentionally, sometimes unintentionally. So whatever we are earning, always there is some part against it we have no effort. So all the way, sometimes some part of the wealth कि जिसके ऊपर हमारा राइट नहीं होता, हमने उसके अगेंस्ट मेहनत नहीं की होती, या हमारी एनर्जी लेवल कम होता है, या हम टाइम कम स्पेंड कर रहे होते हैं, whatsoever may be the case, but no one can claim that whatsoever she is earning is 100% halal. कोई भी ये नहीं कह सकता. But Allah wants us to eat and drink and to consume everything which is lawful to you, which is purified. Halalan tayyiba. Allah says in the Quran, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Eat the purified one, razaqnakum, whatsoever we have given to you. तो आपने उसमें से purified wealth आप consume कर सकते हैं. So the thing is how to be purified this part of wealth. So it is recommended to spend a tiny part of wealth all the way, either as obligatory or as optional, as an optional charity for the sake of Allah, spent on specific categories of the people, which we are going to discuss later on. So needy people and some other people. Okay? So in order to the wealth which was, जो आपके माल के साथ मिली और जिसके ऊपर आपका हक नहीं था, वो आपके माल से अलग हो जाए, and whatsoever remains for you, this is to be purified. वो पाक होगी अब जब आप वो माल इतना आप क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे. So this is the philosophy of the charity, कि आप अपने माल को क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं. And definitely to increase, when Allah promised, ठीक है, apparently your wealth is decreasing when you spend, but Allah promised actually this would be increase. Which promise is true all the way? Humans of Allah. Allah's promise always true. When Allah says कि वो बढ़ेगी तो वो बढ़ के मिलती है. Okay,
This is called iman bil ghaib. We discussed in the beginning in the topic of faith, iman bil ghaib. जाहिर में कुछ चीजें और नजर आती होती हैं, असल में फेथ इज व्हाट इज अनसीन, जिसका हमें पता नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज अ फिलॉसफी टू प्योरीफाई योर वेल्थ. इन टर्मिनोलॉजिकल सेंस, zakat to spend a specific and prescribed amount of wealth for the sake of Allah after the ownership of nisab. When somebody possesses its nisab, so she need to pay this amount of zakat for the sake of Allah. What is nisab? Nisab is standardized amount of wealth which used to be vary in different terms. For example, in gold, nisab of zakat is different. In silver, zakat of nisab is different. In cultivated land, nisab is different. Later on हम इसके ऊपर ज़्यादा बात कर रहे होंगे. Just to have the idea of nisab, standardized amount of wealth. When somebody's wealth reach this level, this cap, so उसके ऊपर zakat क्या हो जाती है? फर्ज हो जाती है. All the terms and conditions are applied. There are 3 conditions for that. Number 1, it need to be paid annually. साल के बाद ज़कात फ़र्ज होती है. And number 2, no loan. ठीक है. If somebody possess money but already under heavy debt, so first she need to get free from all these loans. Then what is the rest amount? फिर उसको देखेंगे कि either it is reaching this cap निसाब or not. वो फिर बात की बात है. So make sure कि पहले हर इंसान को अपना कर्ज अदा करना चाहिए. ओके. जो कि ह्यूमंस का राइट है उसके ऊपर, पहले उसको अदा करें जो हुकूकुल इबाद है. थर्ड वन, obviously ownership of nisab, which is already discussed. These are the 3 conditions for paying charity. Ownership of nisab, एक साल गुजर जाए उस माल के ऊपर जो आपके पास पड़ा हुआ है, whatsoever you are possessing, और आपके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं. गोल्ड, निसाब ऑफ गोल्ड, 7.5 तोलास गोल्ड. If somebody possesses less than this, ठीक है जी, she is exempted from paying zakat, this obligatory charity. Okay. Silver, 52.5 तोला silver. Okay. If somebody possesses less than this, so she is exempted. Understand? Now the question is that in these days there is greater difference between the cost of gold and cost of silver, right? Gulf, big difference between the cost of both. Per tola gold reaching almost 1.5 lakh, उससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया. ऐसे ही है. While the silver as compared to the gold, far behind, only few thousands, 2,000 or 3,000 around, whatsoever, I don't know. So in these days, if somebody possess, for example, 2 tola gold, actually she has a capacity to buy gold. Gold is actually money. Gold and silver actually money. If somebody possess 2 tola gold, that's mean she has 3 or more lakh, and she is easily purchase this silver, 52.5 तोला silver. So उसको ये हिसाब, ये कैप तो उसने टच कर लिए, अब उसके ऊपर ज़कात होगी कि नहीं होगी. दिस इज द असाइनमेंट. जहाँ पे आपको किसी मदरसे में जाना होता है, किसी दारुल इफ्ता में जाना होता है, किसी स्कॉलर को कंसल्ट करना होता है, और आपने अपना रिप्लाई मुझे जमा करवाना होता है. ये एक एक्टिविटी है. बट इन रमज़ान इसमें यह कि आगे कोई ब्रेक श्रेक आ रही है, तो उसमें आप जहाँ पर भी आप हों, अपने सराउंडिंग में किसी भी स्कॉलर से, मेल और फीमेल, जिससे भी आप इसको डिस्कस कर सकें. 2 तरह की ओपिनियन अभी आपकी क्लास से ही आ गई हैं. ठीक है. समवन सेज के जी उसके ऊपर ज़कात नहीं है बिकॉज उसके पास गोल्ड है, और गोल्ड वो उस
निसाब को पहुंचानी, उस कैप तक पहुंचानी। समवन सेज के जी ठीक है, गोल्ड इज एक्चुअली द मनी, कैपेसिटी उसके पास आ गई है सिल्वर के लिहाज से, तो उसके ऊपर ज़कात होनी चाहिए। सो ये एक स्कॉलरली डिस्कशन है, ये आप लोग फिर खुद करें इसको जिसके साथ भी आपने कर लिया। सो दिस इज द कैप फॉर गोल्ड, दिस इज द कैप फॉर सिल्वर। ओके, ज़कात किन चीज़ों पर होती है? नंबर 1, कैश एंड करेंसी। इफ समबडी पोजेस एनी कैश और करेंसी जो भी मार्केट में, विच इज कॉल्ड माल मुतकव्विम। माल मुतकव्विम इज अ फिकी टर्म, मीन्स कि जिस चीज़ की कोई कीमत लगाई जाती है, जिसकी कोई कॉस्ट होती है, उसको कहते हैं माल मुतकव्विम। कैश एंड करेंसी है। नंबर 2, बिजनेस एसेट्स है। नंबर 3, gold and silvers. So when somebody possess this money, when somebody reach this cap, male or female, so the day he she becomes sahibe nisab, the owner of nisab, need to wait for 1 more year. When the 1 year complete, then he she need to calculate whatsoever I possess today. For example, people accumulate their hisab and nisab of zakat on the first Ramadan or in 15 of Shaban. ठीक है, तो अब उन्होंने उस दिन देखना है कि उस दिन उनके पास क्या पड़ा हुआ है, बिजनेस एसेट्स क्या है, ठीक है, कैश इन हैंड क्या है, और उनके पास गोल्ड और सिल्वर क्या है। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करना है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी, अब उसमें से कोई लोन वगैरह है उसको माइनस करना है, कोई इमीडिएटली कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है किसी चीज़ की, उसको माइनस करना है, किसी को कोई पैसे देने हैं जो आप पर ड्यू है उसको माइनस करना है, किसी से कोई इमीडिएटली लेने हैं तो उसको उसमें ऐड करना है। अंडरस्टैंड? अब टोटल करके उसमें से अब हमने देना है उसकी ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी है, हाउ मच टू बी पेड in percent, 2.5%. This is the amount of zakat of total wealth whatsoever you possess after excluding the loan money, ठीक है, and rest of the expenditures immediately जो भी आपके जिम्मे वो आप करके, तो जो पैसे बचेंगे आप उसमें से 2.5%. For example, you can say 1 rupee after each 40 rupees. 2 rupees from 80 rupees, 2.5 rupees from 100 rupees, and 25 rupees from 1000 rupees, 2500 from 1 lakh, ठीक है जी, 5000 from 2 lakh, 10,000 from 4 lakh. आगे परेशान होते जाएंगे आप, ठीक है जी। सो परसेंटेज क्या है, 2.5 ऑफ टोटल, ठीक है जी, जिसको दिस इज अल्लाह राइट, ये अल्लाह का हक है हर वेल्दी शख्स के ऊपर कि जो भी शख्स अल्लाह की फेवर्स को, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय कर रहा है या कर रही, वो इतनी अमाउंट ऑफ वेल्थ एनुअली, ठीक है जी, ऑन द पीपल विच आर हु आर लेस फॉर्चुनेट, नीडी पीपल, लेटर ऑन 8 कैटेगरीज वो हम उसके ऊपर बात करेंगे, तो उनमें से किसी एक के ऊपर उसको वो स्पेंड करना है, और स्पेंड भी करना है विलिंगली, दिल के अंदर कोई बोझ महसूस करके नहीं, बल्कि विलिंगली कि अल्लाह तुम्हें चांस दे रहा है कि तुम उसको ये पैसे या इतने ही पैसे तुम दो, उसको इस अंदाज में भी खर्च नहीं करना कि जिसको दे रहे हैं तो उसके ऊपर एहसान जताएं कि तुम्हें हम ज़कात दे रहे हैं, नहीं, बल्कि उसका एहसान है कि वो तुमसे ज़कात ले रहे हैं। और ज़कात क्या है कि तुम्हारे माल के साथ जितने मिसलीड्स की वजह से कोई इलनेस, कोई डिजीजेस, कोई और तरह के नुकसान, तुम्हारे माली जानी नुकसान, वो सारे अब कंपनसेट हो जाएंगे जब तुम उस माल को अपने पास से दूर कर दोगे। तुम नहीं दोगे तो हॉस्पिटल्स हाजिर है, क्या पता तुम्हारा वहाँ पर 5-10 लाख भी लग सकते हैं। तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आने वाली आफात और उन चीज़ों से क्या कर देंगे, महफूज कर देंगे। अल्लाह का प्लान होता है, इंसान को पता नहीं होता कि क्या होता है, ठीक है। सो चैरिटी इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिचुअल्स, अंडरस्टैंड। सो अमाउंट ऑफ ज़कात होगी है 2.5. So
व्हेन वी से बिजनेस एसेट्स पे ज़कात है, सो इसमें डिस्टिंक्शन मौजूद है। इफ समबडी पोजेस लैंड और प्लॉट्स, ठीक है जी, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, बिजनेस वुमेन्स होती हैं, तो क्या होता है कि जनाब प्लॉट परचेज करते हैं, ठीक है जी। एक जनाब प्लॉट DHA में है, एक जनाब बहरिया में है, एक मॉडल टाउन में है, ठीक है जी, एक वावड़ा टाउन में है, एक अस्करी 10 में है, ठीक है जी। तो अब क्या है कि उन सब प्लॉटों में से अगर किसी प्लॉट के ऊपर अपना ज़ाती घर बनाने के लिए, तो उस प्लॉट पर ज़कात नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए है, बिजनेस के पर्पज़ के लिए, उससे फ़ायदा उठाना है, ठीक है, तो फिर उस पर ज़कात। वंस एन ईयर पास, आपकी उसके ऊपर मिल्कियत को 1 साल हो गए, ठीक है। अब उस दिन द डे 1 ईयर कंप्लीटेड ऑन दिस प्लॉट, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसका 2.5% ऑफ टोटल वो आप पर ज़कात पड़ गई है आपको। अब आप इमीडिएटली दें अगर आपके पास लिक्विड कैश पड़ा हो, या आप थ्रू आउट द ईयर जैसे जैसे आपके पास आते रहे आप वैसे वैसे जो है ना वो ज़कात का अपने पास हिसाब लिख लें और वो उसको क्या करते रहें, खर्च करते रहें। जो पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है। रेजिडेंस जो अपना घर है, चाहे वो 5, 10, 50 कनाल के ऊपर क्यों ना मुश्तमिल हो, ज़ाती घर के ऊपर ज़कात नहीं। अंडरस्टैंड? जो ज़ाती इस्तेमाल में जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी ज़कात नहीं है, कार वगैरह। हाँ, जो बिजनेस एसेट्स के लिए जो गाड़ियाँ हैं कि जिनसे आप मनी कमा रहे हैं उसके ऊपर ज़कात, लेकिन ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी पर ज़कात नहीं है। अंडरस्टैंड? गैराज में चाहे 3, 4, 5 क्यों नहीं खड़ी है, अगर वो सारा साल इस्तेमाल होती है उन पर ज़कात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वो खड़ी रही और पूरा साल आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, चाहे वो आपके घर में बर्तन पड़े हों, चाहे वो आपके घर में बिस्तरे पड़े हों, चाहे वो आपके घर में कपड़े पड़े हों, जो भी चीज़ पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई ना, तो वो आपकी ज़रूरत से ज़ायदा, अब उस पर ज़कात पड़ जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द केस विद सेवरल वुमेन्स जो कि शादीशुदा होती हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा माल देते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। दिस इज़ वेरी मच नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज मैटर्स कि मेरी पोजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर उसके घर में इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं उस वुमेन के पास, ठीक है, घर की चीज़ों का आमतौर पर वुमेन्स को पता होता है, तो उसकी फिर अगर या तो उसको इस्तेमाल में लाए किसी भी दिन कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ताकि वो ज़कात से इंक्लूड हो जाए। अदरवाइज ये कि साल अगर गुजर गया तो फिर उसको वो उसमें शामिल हो जाएगा, उसकी कॉस्ट के ऊपर ज़कात अब जो है ना वो पड़ जाएगी, जो यूज़ में आ गई उस पर ज़कात नहीं। क्लियर है? तो बिजनेस एसेट पर ज़कात है। फॉर एग्जाम्पल लोग जो है वो किराए पे घर दे देते हैं, ठीक है जी, खुद अपने घर में रह रहे हैं लेकिन एक घर जो है ना वो किराए पे दिया, तो अब किराए वाले घर की कॉस्ट पे उसकी मालियत पे ज़कात नहीं है, बट ज़कात इज ऑन द रेंटल मनी विच यू आर रिसीविंग एवरी मंथ, ठीक है। अगर वो साथ साथ स्पेंड हो रही है, खर्च हो रही है, तो जाहिर है बाय द एंड ऑफ द ईयर उसमें से कोई बचे ही नहीं। बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर उसमें से कोई बची है, सेव हुई है, तो रेंटल मनी के ऊपर ज़कात है, उसकी जो मालियत है, उसकी जो कॉस्ट है मार्केट में, उसकी वैल्यू, उसके ऊपर ज़कात नहीं। नहीं, लोन का तो सिंपल बता दिया कि लोन का उनको पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर इतना लोन है। हाँ जी, वही तो अर्ज किया ना कि वो अपने टोटल एसेट को एक जगह पे इकट्ठा करे सबसे पहले कि मेरे पास व्हाट आई पोजेस, देन उसके बाद लोन है, इमीडिएटली एक्सपेंडिचर है, वो सारी उसमें से एक्सक्लूड करें। अब जो बाकी बच गया, अब देखना है कि अभी वो ज़कात के निसाब को, उस कैप को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कर रहे हैं तो 2.5% दे, नहीं कर रहा तो ना दे। दिस इज ऑल अबाउट फेथ एंड कमिटमेंट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि if somebody feel this responsibility
कि आई एम फॉलोइंग अ रिलीजन, उसकी तरफ से मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है और मुझे उसको वो करना है, अदरवाइज आई शुड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इफ आई एम कमिटिंग दैट आई हैव टू ओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला's ऑर्डर रिगार्डिंग माय वेल्थ एंड मनी, ठीक है, तो फिर उसके लिए इजी होगा ये करना। अदरवाइज आई क्लेम दैट आई फुल्ली रिस्पॉन्सिबली आई एम सेइंग दैट if the wealthy people in Pakistan are ready to pay zakat honestly, only zakat, I'm not talking about the optional charity. If they are committed to pay zakat only 1 year, सिर्फ 1 साल zakat दे दे अपने मालदार लोग पाकिस्तान के जो उनसे ले ली है, I 100% I claim that poverty from the Pakistan would be vanished. Just matter of 1 year. इतना पैसा है पाकिस्तान के मालदारों के पास, but they are not ready to pay zakat with honesty and commitment to Allah subhanahu wa ta'ala. हाँ, अगर उनको कोई मुसीबत पड़ जाए, कोई मसला पड़ जाए, कोई पीर फकीर उनको कह दे कि तुम इतनी देगे चढ़ा दो, तो वो फिर देगे चढ़ा देंगे, ठीक है। बट ये है कि जो अल्लाह का हक है, जो मैंडेटरी चैरिटी है, वो नहीं करते, उसका हिसाब नहीं करते। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी वेल्दी पीपल, वो बहुत मजलूम लोग भी हैं, पाकिस्तान के जो मालदार हैं उनको इतने कट लगते हैं बेचारों को। सबसे पहले तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है, उनके हर एक डॉलर का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है, उनसे उसका टैक्स गवर्नमेंट लेती है। फिर बैंक उनसे ज़कात काटते हैं, फिर वो जुमा पढ़ने जाते हैं, मौलवी साहब उनको डराते हैं कि तुम ज़कात पे करो, वो बेचारे फिर दोबारा ज़कात देते हैं। मौलवी साहब उनको बताते हैं कि बैंकों ने जो ज़कात काटी है तो हमें पता नहीं कि वो सही जगह पे खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सूद का काम भी होता है, ठीक है। तो वो बेचारे डर के फिर दोबारा से क्या करते हैं, ज़कात में। तो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है, जो मालदार, वो बेचारा मजलूम भी है इस एतबार से। बट इट्स ऑल मैटर ऑफ द कमिटमेंट, ठीक है, कि आप अल्लाह के साथ कमिटमेंट करें कि ठीक है, मेरे वेल्थ के ऊपर, मेरे माल के ऊपर एक राइट है और मैं उसको जो है ना वो पे करता हूँ या करती हूँ। ओके, सो इन नेक्स्ट वी शैल डिस्कस ज़कात इन लैंड। लैंड के ऊपर क्या ज़कात होती है, कैसे होती है, कल्टीवेटेड लैंड, नॉन कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है, एंड माइंस, ठीक है जी, रिसाव ऑफ एनिमल, ठीक है जी, जानवर जो लोग पोजेस करते हैं, काउस, शीप, बुफेलोज, ठीक है जी, उनके ऊपर कैसे ज़कात होती है, उन्होंने कैसे ज़कात देनी होती है, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। और ऑप्शनल चैरिटी की टाइप्स कौन सी है,